Hello friends, how are you all? Fine. So today we start a topic of chapter 4. Name is projectile motion. So in a motion in plane, chapter number 4, in this chapter, one of the important topic which is asked in several times in GNET and also asked in the competitive exam, that is projectile motion, prakshipt gati. So projectile motion in day-to-day life we observe many things which doing a projectile motion. For an example, in a cricket ball, when the cricket ball throw in a ground, then that ball is thrown at some angle with the surface. Okay, suppose this is the surface of ground, this is a ball. So जब हम ball throw करेंगे, when we throw a ball at some angle with the surface, then that represent as a projectile motion. Project, it means prakshipt, an angle with the surface. So that ball move in the direction of parabolic shape. First upward direction, then after downward direction. पहले ऊपर जाएगा, then after goes to down. So if this is a velocity vector of initial, which represent as a u is a initial velocity. So it is a vector quantity. So vector quantity का दो component रहेगा. One of the component in the direction of horizontal, which is represent as a ux, and दूसरा component vertical component, which represent as a uy, a component in the direction of vertical. Ready? So if this is a u, initial speed, then one of the component in the x direction, you can say this is the x direction, इसको हम x axis भी बोल सकते हैं, इसको y axis बोल सकते हैं, और horizontal direction और vertical direction. This is a horizontal displacement, so horizontal direction, and here is a vertical. Ready? So horizontal component is u cos theta. Why u cos theta? We know the vector quantity have the component parallel component and perpendicular component. एक component होता है parallel, एक component होता है vertical component. So अगर ये हमारी initial speed है तो उसका दो component रहेगा. One of the component in the direction of horizontal motion. देखिए जब प्रक्षिप्त गति होती, when the projectile motion is happen, then actually particle move in the two dimension. Initially we study in the third chapter where only one dimensional motion is happen. When you throw a ball upward direction, so this is only one dimensional, only x direction change हो रही है. अगर इस तरह से throw करेंगे only y direction is moving. But when we throw at some angle, then it's x direction and y direction, in both the direction motion happen. Here we can see जो हमारी समक्षितिज है x direction, in the x direction the component of the velocity is constant, because constantly a displacement is increase. Okay, यहाँ पर देख सकते हैं constantly displacement increase हो रहा है. यहाँ पर क्या हो रहा है? When object try to move upward direction, reaching at the maximum height, और वहाँ से वापस आएगा नीचे तरफ, तो velocity initially maximum, then after decrease 0 and again goes to down to become a maximum. तो शुरू से यहाँ से अगर देखें तो displacement increase होगा, then maximum displacement, then displacement decrease, and now 0 to ground state. So there is a two displacement in this. इसको रिमूव कर देते. Okay. So here two kind of displacement is happen. One is in y direction, one is in x direction.
सो एक्स डायरेक्शन में जो मोशन हो रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज यू एक्स, यू कोस थीटा. दिस इज फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन. एंड वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो y डायरेक्शन में कंपोनेंट है विच इज कॉल्ड वी वाई, उसको हम बोलेंगे u साइन थीटा कंपोनेंट. क्योंकि जिस डायरेक्शन में मोशन होगा उस डायरेक्शन में वेलोसिटी हमें चाहिए. अब मोशन इज ओनली हैपन इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. सो यहाँ पर y डायरेक्शन में वेलोसिटी है u cos थीटा, तो u cos थीटा की वजह से डिस्प्लेसमेंट होगा y डायरेक्शन में एंड u sin थीटा की वजह से होगा अपर डायरेक्शन. लेकिन अपर डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वो कॉन्स्टेंटली डिक्रीज हो रही है. एट अ मैक्सिमम इट बिकम जीरो, क्योंकि वहां से वो यू टर्न लेगा. सो एट अ मैक्सिमम हाइट, हियर वी कैन से एट दिस मैक्सिमम हाइट g in downwards and here vy is 0. Only velocity exists in x direction. यहां पर वेलोसिटी का y कंपोनेंट 0 हो गया. क्यों? कि यहां से मोशन कट हो जाता है. देखिए आफ्टर दिस पॉइंट डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज बिकम मैक्सिमम, देन आफ्टर इट्स टेक अ यू टर्न, अ बॉल टेकिंग अ यू टर्न टू ग्राउंड. सो यहां से अब अपर नहीं जाएगा. सो इसका y डायरेक्शन में कंपोनेंट 0 हो गया. दैट्स व्हाई दिस इज हैपन. सो दिस इज रिप्रेजेंट अ वर्टिकल मोशन. Vertical motion is represented by the velocity y component. Here, if you want to find a time taken to reach at a maximum height, मतलब अगर यहाँ तक पहुँचना है तो कितना टाइम चाहिए. So here we discuss about velocity. The another component which is most important for the motion, that is acceleration. दूसरा component चाहिए acceleration, प्रवेग. Acceleration क्या होता है? So acceleration वो भी x direction और y direction में मिलेगा यहाँ पर, क्योंकि एक्सेलरेशन इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी. सो यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए कॉन्स्टेंटली अ वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स और हॉरिजॉन्टल इज कांस्टेंट. अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन 0 रहेगा, बिकॉज चेंज इन वेलोसिटी दैट रिप्रेजेंट द एक्सेलरेशन. चेंज इन वेलोसिटी दैट गिव्स द आइडिया अबाउट एक्सेलरेशन. सो यहाँ पर एक्सेलरेशन रहेगा 0. देयर इज अ नो कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स. दूसरी तरह से ये यहाँ पर समझ सकते हैं. देखिए gravitational acceleration is always downwards. Gravity always try to pull any object to groundwards. Gravity जो है दरेक ऑब्जेक्ट को डाउनवर्ड्सली पुल करती है. देखिए तो कॉन्स्टेंटली ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स. तो कहीं भी जगह पे अगर ग्रेविटी हम फाइंड करेंगे तो डाउनवर्ड्स रहेगी, एंड दैट इज अ कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन. तो अगर ग्रेविटी डाउनवर्ड्स है तो उसका x डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट ही नहीं रहेगा. अगर फाइंड करने जाएंगे तो दैट x डायरेक्शन कंपोनेंट इज g cos 90 एंड cos 90 क्या रहेगा 0. तो इस तरह से भी समझ सकते हैं कि x डायरेक्शन में कंपोनेंट ऑफ ग्रेविटी और कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन इज 0. अदरवाइज यू कैन सी ग्रेविटेशन द वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल इज कांस्टेंट u cos थीटा, तो भी 0 रहेगा. एंड द y डायरेक्शन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज एग्जिस्ट विच इज रिप्रेजेंट एज अ माइनस, क्योंकि अगर 0 ओरिजिन को अगर हम यहाँ पर मेंटेन करें, ओरिजिन इज अ 0 पॉइंट, देन एक्सेलरेशन इज एट डाउनवर्ड्स. ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहाँ पर है? डाउनवर्ड्स में है. तो डाउनवर्ड्स मोशन के लिए अगर हम कार्टेशियन साइन यूज करें, ओके, ग्राफ में जो होता है वही होता है यहाँ पर भी. दिस इज अ प्लस एक्स डायरेक्शन, हियर इज अ माइनस एक्स डायरेक्शन, हियर इज प्लस वाई एंड हियर इज माइनस वाई. सो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स है, अ कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन इन द वाई डायरेक्शन डाउनवर्ड्स रहेगा. तो डाउनवर्ड्स के लिए हम कौन सा यूज करेंगे? नेगेटिव साइन. सो दैट्स व्हाई दिस इज माइनस जी. दिस ऑल डेटा वी यूज टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशंस. 2-3 इक्वेशन इंपॉर्टेंट है. वन ऑफ द इक्वेशन इंपॉर्टेंट इज टाइम टेकन टू रीच एट अ मैक्सिमम हाइट. टाइम टेकन टू reach at maximum height. मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए कितना टाइम चाहिए?
हाउ लॉन्ग इट टेक टू टाइम रीच अ मैक्सिमम हाइट। मतलब अगर यहां से हम प्रोजेक्टाइल मोशन करेंगे कोई बॉल का, किसी बॉल को हमने यहां से थ्रो किया तो कितनी देर में वो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचेगा। यहां पर बोल सकते हैं दिस इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ टोटल मोशन एच मैक्सिमम। यहां से यहां तक जाएगा तो यही मैक्सिमम हाइट है ना। इनिशियली डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज 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 बिकम अ मैक्सिमम, देन आफ्टर डिक्रीज 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 डिक्रीज, सो दिस इज द मैक्सिमम हाइट। रेडी। तो देखिए यहां पर हम समझ सकते हैं मैक्सिमम हाइट पे फाइनल वेलोसिटी 0 है। सो एट अ मैक्सिमम हाइट वी कैन से a final velocity Vy is equals to 0 and acceleration in the y direction is minus g. Okay, हमें टाइम फाइंड करना है। एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, तो हियर वी कैन यूज अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन इक्वेशन। तो 3 कांस्टेंट एक्सेलरेशन इक्वेशन है। v is equals to u plus at, v square minus v naught square is equals to 2ax and x is equals to ut plus half at square। लेकिन हमारे पास डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो टाइम वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो टाइम वाला फॉर्मूला क्या है, दैट इज v इज इक्वल टू u प्लस at। ये सुनो, तो हम यहां पर बात कर रहे हैं वर्टिकल मोशन के लिए। वर्टिकल मोशन क्योंकि डायरेक्शन जो हम यहां पर देख रहे हैं मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए वर्टिकली डिस्प्लेस होना पड़ेगा ना। एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो हैपन इन हॉरिजॉन्टली, लेकिन हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो वो यूज नहीं करेंगे। यहां पर इतना डिस्प्लेसमेंट होने के लिए कितना टाइम चाहिए वो फाइंड करना है। तो फाइनल वेलोसिटी जहां यहां से यहां पहुंचेगा तो फाइनल वेलोसिटी 0, तो वाई डायरेक्शन के लिए यूज करें इसलिए सब कुछ यहां पर वाई आएगा। टाइम तो टाइम होता है, एक्स डायरेक्शन या वाई डायरेक्शन ऑलवेज सेम। रेडी। सो वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन वेलोसिटी है 0, फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन वी ऑलरेडी प्रूव, दैट इज u sin थीटा। ओके, तो वो तो हमें पता है u sin थीटा। और देखिए u sin थीटा कंपोनेंट कहां पर है, अपर डायरेक्शन में। देखिए तो y डायरेक्शन अपवर्ड है ना, तो वहां पर क्या आएगा, पॉजिटिव, इसलिए हमने पॉजिटिव लिया। ये g डाउनवर्ड्स में था तो g डाउनवर्ड्स इसलिए वहां पर क्या आएगा, नेगेटिव। ठीक है। सो यहां पर एक्सेलरेशन हम लेंगे -g इंटू टी। अब टाइम फाइंड करना है तो टाइम को सब्जेक्ट करो, टाइम गोज टू दिस साइड, देन gt is equals to u sin theta. Make a subject to t, then t is equals to u sin theta upon g. g is the gravitational acceleration. तो इसको sometimes TMs भी रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि this is the time of projectile motion to reach at a maximum height. तो maximum का m यहां पर लिख सकते हैं। देखिए तो this is the half motion। आधा डिस्टेंस ही कवर हुआ ना, आधा डिस्टेंस सेम टाइम में कवर होगा। तो फुल डिस्टेंस विच इज कॉल्ड टोटल फ्लाइट टाइम, अ टोटल फ्लाइट टाइम, टोटल फ्लाइट टाइम मींस पार्टिकल जहां से हमने थ्रो किया वहां से ग्राउंड तक पहुंचा उसमें कितना टाइम लिया, हाउ मच टाइम टेकन टू रीच एट द ग्राउंड अगेन। समटाइम्स ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि हाउ लॉन्ग टेक टू टाइम टू रीच ग्राउंड अगेन, तो उसी में भी टोटल फ्लाइट टाइम ही बोलेंगे TF। ये TF 2 तरह से प्रूव कर सकते हैं। वन ऑफ द इक्वेशन वी कैन यूज फॉर द हॉरिजॉन्टल मोशन, क्योंकि यहां पर मोशन किस डायरेक्शन में हो रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और वर्टिकल दोनों में हो रहा है। अगर ग्राउंड पे वापस पहुंचना होगा तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा वर्टिकल डायरेक्शन में। देखिए वर्टिकली भी यहां पर था और वापस वर्टिकली भी यहां पर ही आएगा, ओनली हॉरिजॉन्टल मूव किया। तो 2 तरह से ये टाइम आप निकाल सकते हैं। वन ऑफ द मेथड इज टेक अ 0 डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन एंड अनदर मेथड टेक अ डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन। तो हम यहाँ पर यूज दोनों में से एक भी यूज नहीं करें, हम करेंगे शॉर्टकट। अ शॉर्टकट ऑफ दिस टाइम फाइंड टू टोटल डिस्प्लेसमेंट, उसके लिए क्या यूज करेंगे, देखिए यहां से यहां तक आने के लिए u sin थीटा अपॉन g, तो आधा डिस्टेंस उतने में ही कवर होगा। तो टोटल डिस्टेंस इज नथिंग बट डबल ऑफ TM। कुछ प्रूफ करने की जरूरत नहीं, इसका डबल कर दो, वही हो गया हमारा आंसर, 2u sin थीटा अपॉन g। दिस इज द टोटल फ्लाइट टाइम और दिस इज द टाइम टेकन टू कवर अ डिस्टेंस इन अ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। संक्षितिज जो हमारी डायरेक्शन है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, उसमें कितना टाइम लगेगा टू रीच ग्राउंड अगेन, तो वो ये टाइम आएगा।
ये टाइम हम यूज करेंगे टू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट इन अ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, उसमें ये टाइम वापस यूज होगा। और ये टाइम यूज करेंगे हम टू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट इन अ वर्टिकल डायरेक्शन। तो दोनों टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहां से जो हम नेक्स्ट लेंगे इसी के साथ, ओके, अब देखिए टाइम तो निकल गया। अब फाइंड करेंगे मैक्सिमम हाइट का इक्वेशन। मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट जो थी वो वर्टिकल डायरेक्शन में रहेगी। हाइट ऑलवेज इन अ वर्टिकल डायरेक्शन। तो देखिए वर्टिकल डायरेक्शन में पहुंचने के लिए हम यूज करेंगे फॉर्मूला ऑफ अ थर्ड इक्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक मोशन। एंड द वन ऑफ द इक्वेशन, एक्चुअली हम इस तरह से इक्वेशन लिखते थे, एस इज इक्वल इन अ थर्ड चैप्टर, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ओरिजिनल इक्वेशन हमारा ये है, लेकिन इन द डायरेक्शन ऑफ वाई, फॉर द वाई डायरेक्शन वी हैव टू टेक अ कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन। इनिशियल वेलोसिटी का भी वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट और एक्सेलरेशन का भी वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट। तो आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं, जस्ट रिप्रेजेंट एज अ वाई, यू वाई टी हाफ ए वाई टी स्क्वायर। अब टाइम का तो कोई डायरेक्शन होता नहीं है, टाइम तो टाइम होता है, तो टाइम में कुछ वाई नहीं आएगा, ठीक है। यू वाई ऑलरेडी हमने फाइंड कर रखा है, दैट इज यू साइन थीटा, पुट इट देयर। तो यू साइन थीटा। अब टाइम कौन सा लेंगे टू रीच अ मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए ये टाइम है हमारे पास टी एम। रेडी, तो यहां पर आ जाएगा सब जगह पे टी एम, ठीक है। ओके, सो इनटू ब्रैकेट यू साइन थीटा अपॉन जी, सॉरी, ओके, ये टीएम पुट किया प्लस हाफ ए वाई। तो वाई की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हमने देखा था यहां पर, तो वाई की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कौन सा है, एक्सेलरेशन इन द वाई डायरेक्शन इज माइनस जी। सो हम पुट करेंगे माइनस जी यहां पर, माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। तो यहां पर जो टी लिखा उसी का स्क्वायर अगेन, सो यू साइन थीटा अपॉन जी होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, देन वी गेट अ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन अ वाई डायरेक्शन, क्योंकि हमने टाइम जो लिया वो मैक्सिमम है, तो डिस्प्लेसमेंट का भी मैक्सिमम मिलेगा। तो विच रिप्रेजेंट एज एच, हाइट, उसकी वजह से एच को रिप्रेजेंट करेंगे। तो दिस इज यू इंटू यू एंड साइन इंटू साइन, दैट इज बिकम साइन स्क्वायर। थीटा अपॉन जी, रेडी, प्लस, एक्चुअली ये नेगेटिव है तो डायरेक्टली हम नेगेटिव भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सो माइनस यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन, अब देखिए यू का स्क्वायर किया, साइन का स्क्वायर किया, जी का स्क्वायर होगा, वन ऑफ द जी इन मल्टीप्लीकेशन ऑफ, सो जी जी कट, सो ओनली रिमेनिंग इज जी। और यहां पर 1/2 था तो उसका क्या बचेगा 1/2, ऐसे ही। अब यहां पर देख सकते हैं दोनों में कुछ सिमिलैरिटीज है। हियर यू कैन सी दिस इज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी, हियर इज हाफ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी। तो दिस इज अ फुल, दिस इज अ हाफ, फुल में से हाफ निकलेगा तो हाफ, 100% माइनस 50%, 50%। तो यहां पर मिलेगा हमें यू स्क्वेयर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। दिस इज अ फॉर्मूला और दिस इज अ एक्सप्रेशन ऑफ अ मैक्सिमम हाइट, h मैक्सिमम। इसको समटाइम्स ऐसे भी बोला जाता है, दिस इज अ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, अदरवाइज मैक्सिमम पॉसिबल डिस्प्लेस, कितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल है, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन और वर्टिकल डायरेक्शन। वाई डायरेक्शन भी बोल सकते हैं और वर्टिकल डायरेक्शन भी बोल सकते हैं। तो ये एक्सप्रेशन आपको याद रखना पड़ेगा। अभी याद रखने के लिए क्या करेंगे, कई सारे एक्सप्रेशन आ गए, ये भी एक्सप्रेशन है, ये भी एक्सप्रेशन है, ये भी एक्सप्रेशन है, एक दो और आएंगे,
वो भी याद रखना पड़ेगा। तो याद रखने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं, देखिए यहां पर आता है u sin थीटा अपॉन g। तो इस तीनों चीज के अगर हम 2 लगा देंगे तो हमारा बन जाएगा h मैक्सिमम। देखिए u का स्क्वायर, साइन का स्क्वायर, g, तो यहां g का स्क्वायर नहीं करना, मल्टीप्लाई कर देना 2g। तो इसमें से ये फॉर्मूला आपको याद रह जाएगा, रटना नहीं है लेकिन हाँ समझना है। समझने के बाद आप रट सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो दिस इज एक्सप्रेशन ऑफ द मैक्सिमम हाइट आइदर कॉल्ड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन अ y डायरेक्शन। अंडरस्टैंड? इसी तरह से हम मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे इन x डायरेक्शन। ये y डायरेक्शन में था, तो x डायरेक्शन मतलब यहां पर आ जाएंगे। ये ग्राफ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टू अंडरस्टैंड द आइडिया अबाउट द प्रोजेक्टाइल मोशन दिस ग्राफ इज मस्ट। सो इनिशियली क्या था, हमने यहां से बॉल को थ्रो किया। व्हेन वी थ्रो अ बॉल फ्रॉम हियर वी रीच टू दिस पॉइंट एट अ मैक्सिमम हाइट, देन अगेन रीच टू द ग्राउंड। तो हमने जो फाइंड किया वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ये फाइंड किया हमने। नाउ वी ट्राई टू फाइंड अ हॉरिजॉन्टल मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो वो बोलेंगे हम x डायरेक्शन में कितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, ओके, x डायरेक्शन में। तो जब x डायरेक्शन की बात हो तो वेलोसिटी लेंगे x डायरेक्शन की, टाइम लेंगे x डायरेक्शन का, और एक्सेलरेशन लेंगे x डायरेक्शन का। वेरी सिंपल, रेडी? सो फॉर दैट लेट अस यूज अ फॉर्मूला ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन। x डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट फॉर्मूला यूज करेंगे। चलो यहां पर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पर रहेगा यहां पर लिखेगा for the x direction. For the x direction क्या करेंगे? A formula is x is equals to vt। v नॉट t भी बोल सकते हैं या फिर ut भी हम लिख सकते हैं। समटाइम्स ut भी लिखा जाता है, तो ut भी लिखेंगे तो चलेगा। ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब डायरेक्शन कौन सी है? x, तो वेलोसिटी इन दी x डायरेक्शन, एक्सेलरेशन इन दी x डायरेक्शन। समझ में आई बात? और डिस्प्लेसमेंट का टाइम वो भी x डायरेक्शन का, तो यहां पर आ जाएगी। x डायरेक्शन के लिए हमने क्या किया था, देखिए दिस इज अ टोटल फ्लाइट टाइम। टोटल फ्लाइट टाइम मतलब जहां से शुरू किया हमने यहां से शुरू किया था, देखिए यहां से शुरू करके वापिस यहां तक आने तक कितना टाइम लगा। तो हमें फाइंड करना है x डायरेक्शन का मोशन, x डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट, तो टाइम कौन सा लेना पड़ेगा? टोटल फ्लाइट टाइम लेना पड़ेगा। सो हियर वी यूज अ t विच इज अ टोटल टाइम। जो हम यहाँ t यूज करेंगे वो हमारा रहेगा टोटल टाइम, नॉट अ मैक्सिमम टाइम, इट्स अ टोटल टाइम। सो विच रिप्रेजेंट एज अ tf। तो देखिए x डायरेक्शन के अंदर हमने जो देखा था वो था कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज u cos थीटा। रेडी? tf हमने ऑलरेडी प्रूव किया है, दैट इज डबल ऑफ मैक्सिमम हाइट टाइम u sin थीटा अपॉन g, उसका डबल, तो हो जाएगा 2u sin थीटा अपॉन g। रेडी? प्लस हाफ What is acceleration in x direction? We already prove acceleration in x direction क्या था? देखिए 0, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं, कोई एक्सेलरेशन नहीं इन x डायरेक्शन, तो इट्स मूविंग विद द कांस्टेंट स्पीड, तो यहाँ पर आएगा वो 0। तो 0 से जो टकराया वो 0 बन जाए, तो उसमें तो 0 कोई 0 0 ही होता है, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज बिकम u इंटू यू, दैट इज u स्क्वायर। रेडी? यहाँ पर हम लिख सकते हैं इस तरह से 2 sin थीटा इंटू कोस थीटा। आपको ऐसा लगेगा भाई 2 आगे क्यों नहीं लिया, तो उसका हमें काम है इसलिए 2 sin थीटा इंटू कोस थीटा, इट्स अ मैथमेटिकल इक्वेशन। 2 sin थीटा और कोस थीटा का होता है u स्क्वेयर साइन 2 थीटा। मैथ्स वालों को पता रहेगा, अगर बायो वालों को पता नहीं है तो भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इज एक्सप्रेशन जस्ट लाइक यू राइट अ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, उसी तरह से ये एक्सप्रेशन है द 2 sin थीटा इंटू कोस थीटा रहेगा, सो यू कैन राइट साइन 2 थीटा। रेडी? तो ये है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन, तो उसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं दैट इज अ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन हॉरिजॉन्टल मैनर।
हॉरिजॉन्टल मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट विच इज कॉल्ड रेंज, उसको बोलेंगे रेंज। आपने सुना रहेगा कि जो हमारी गन वगैरह रहती है उसमें रेंज आती है, 3 किलोमीटर रेंज, 5 किलोमीटर रेंज, 4 किलोमीटर रेंज। तो यहाँ से अगर हम टारगेट करेंगे एनिमी को, तो यहाँ से अगर हमने मिसाइल थ्रो की है तो कितने डिस्टेंस में जाके गिरेगी, दैट डिस्टेंस इज रिप्रेजेंट एज अ रेंज ऑफ दैट बुलेट। तो बुलेट की रेंज रहती है, तो वही ये हमारी रेंज है, तो इसको बोलेंगे रेंज विच रिप्रेजेंट एज अ आर ओनली। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ रेंज। अब रेंज में एक मैक्सिमम रेंज भी आ सकती है, इसमें मैक्सिमम रेंज भी फॉर्मूला हम फाइंड कर सकते हैं फॉर द मैक्सिमम रेंज आर मैक्सिमम। अब देखिए आर मैक्सिमम अगर हमें फाइंड करना है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू लेनी पड़ेगी। सो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज फिक्स, तो उसको हम चेंज नहीं कर सकते, तो जी इज फिक्स। इनिशियल वेलोसिटी, एक बार आपने थ्रो कर दिया तो आप कुछ नहीं कर सकते ना। देखिए यहां से अगर आपने पार्टिकल को थ्रो कर दिया तो बीच में जाके पुश नहीं कर सकते, एक बार थ्रो कर दिया तो कर दिया, वो चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा। इट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी इज ऑल्सो फिक्स, उसमें हम चेंज नहीं कर सकते, तो इनिशियल वेलोसिटी इज फिक्स। तो चेंज किस में कर सकते हैं, वी कैन चेंज द वैल्यू ऑफ साइन 2 थीटा। सो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज 1। कोई भी एंगल हो साइन थीटा की वैल्यू 1 से कम ही रहेगी, और मैक्सिमम जो वैल्यू है साइन थीटा की वो रहती है 1, एंगल ऑफ 90, साइन 91 रहेगा। तो उसका मतलब ये हुआ अगर साइन 91 होता है, इट मीन्स अगर हम थीटा रखेंगे 2 थीटा रखेंगे 90 का, तो थीटा रहेगा 45। तो एट ए एंगल ऑफ 45 अगर आप थ्रो करेंगे तो यू रीच दैट बॉल एट अ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, तो उसकी रेंज रहेगी मैक्सिमम। तो साइन 2 थीटा की वैल्यू 1, तो ओनली यू स्क्वायर इज हियर। सो दिस इज द रेंज इन अ मैक्सिमम। सो ये हो गया हमारा पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन का थ्योरी। इसमें एक और इक्वेशन है जो रिप्रेजेंट करेगा ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। तो इतने फॉर्मूला रहेंगे। इसके साथ हमने 3rd चैप्टर में डिस्कस किया था व्हेन टू क्वांटिटी इन अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अगर y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x तो उसका स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है, इफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो उसका कर्व आता है हाइपरबोला। दिस इज स्क्वायर टू प्रोपोर्शनल, इसलिए उसका आया पैराबोलिक कर्व। दिस इज रिप्रेजेंट एज अ पैराबोलिक कर्व, पैराबोलिक ग्राफ रहता, परवलय पैराबोलिक ग्राफ रहता। तो पैराबोलिक ग्राफ का एक एक्सप्रेशन है जो हम यहाँ पर निकाल सकते हैं बाय हेल्पिंग ऑफ दिस ऑल द इक्वेशन दैट वी अंडरस्टैंड टुडे। सो फॉर दैट दिस इज अ जनरलाइज इक्वेशन, इसको हम जनरलाइज इक्वेशन भी बोल सकते हैं। देखिए जिसमें y डायरेक्शन और x डायरेक्शन दोनों साथ में आएगी। किस तरह से, आ एक्सप्रेशन वी कैन यूज y इज इक्वल टू v नॉट, आइदर यू कैन कॉल u नॉट u x इंटू टी प्लस हाफ a टी स्क्वेयर। ये x नहीं, जनरली y लिखेंगे। अब टाइम, अब देखिए इन अ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इन अ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, यहां पर देखिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या हुआ था, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द मोशन फॉर दैट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यूनिफॉर्मली मोशन होगा, कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, यूनिफॉर्मली मोशन। अगर यूनिफॉर्मली मोशन है तो टाइम के साथ साथ हम वेलोसिटी को कांस्टेंट ले सकते हैं। सो फॉर दैट वी कैन यूज, अच्छा हम यहां पर ऐसा लिख सकते हैं, देखिए ux इज इक्वल टू वेलोसिटी, मतलब क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ x, टाइम इन द डायरेक्शन ऑफ x, दैट इज सपोज t। रेडी, तो यहां पर ऐसा लिख सकते हैं दैट x इज इक्वल टू ux इंटू टी, और ux क्या था, u cos थीटा इंटू टी। तो हम x की जगह पे लिख पाएंगे u cos थीटा इंटू टी, ux इज इक्वल टू एक्स बाई टी। तो अगर t को सब्जेक्ट करेंगे यहां पर तो t इज इक्वल टू क्या रहेगा, x अपॉन u cos थीटा। यस, दिस इज द रिलेशन विथ टाइम टू x डिस्प्लेसमेंट। हमें एक ऐसा फॉर्मूला बनाना है जिसमें हम y डायरेक्शन और x डायरेक्शन दोनों को मेजर कर पाए, इसलिए जनरलाइज इक्वेशन बनाते हैं, उसको बोलेंगे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। तो t को हम रिप्लेस कर देंगे, दिस ऑल आर इन x डायरेक्शन, y डायरेक्शन, तो y डायरेक्शन यहाँ पर है तो y y y ही आएगा। ओके, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, uy। तो यहाँ पर ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था uy इज नथिंग बट u साइन थीटा, अब तो आपको पता होना चाहिए। t इज इक्वल टू क्या पुट कर सकते हैं, दैट इज x अपॉन u
कोस थीटा, रेडी, प्लस हाफ एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन, हमने पता किया था ग्रेविटी इज ऑलवेज डाउनवर्ड्स, तो वो हो जाएगा हमारा नेगेटिव माइनस जी, रेडी। तो टी तो ऑलरेडी फाइंड किया हुआ, तो उसका स्क्वायर कर देंगे, x अपॉन यू कोस थीटा उसका स्क्वायर, गॉट इट। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो देखिए यहां पर समझ में आ रहा है, यू कट हो रहा है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा वो हो जाएगा आपका टेन थीटा, टेंजेंट, रेडी। तो टेन थीटा इंटू एक्स, यहां पर नेगेटिव जी तो उसको बाहर ले लेंगे, माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स का स्क्वायर अपॉन यू का स्क्वायर कोस का स्क्वायर इंटू थीटा है, दोनों का स्क्वायर हो, ऐसा नहीं कोस का स्क्वायर नहीं होगा, दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, जस्ट लाइक ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर, तो यू का स्क्वायर एंड कोस का स्क्वायर, 2 इज ऑलरेडी देयर, सो दिस इज एक्सप्रेशन ऑफ वाई। तो यहां पर हम क्या देख सकते हैं, देखिए ये तो कांस्टेंट टर्म हो गया, तो यहां पर देख सकते हैं दैट वाई इज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, यहां पर देखिए हाईएस्ट पावर जो है उसको यूज करना पड़ता है, तो हाईएस्ट पावर फॉर द एक्सप्रेशन इज वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहां पर हम देख सकते हैं दैट डिस्प्लेसमेंट इन अ वाई डायरेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बट स्क्वायर के प्रोपोर्शनल में है, विच रिप्रेजेंट अ पैराबोलिक ग्राफ। तो अगर किसी को मैथ पता है तो ये समझ में आ जाएगा कि ये हो जाएगा पैराबोलिक कर्व, जो हमारा पैराबोलिक कर्व है वो उसका एक्सप्रेशन ये रहेगा y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। सो दिस इज द होल डिस्कशन अबाउट द प्रोजेक्टाइल मोशन। सारे एक्सप्रेशन आर इंपॉर्टेंट, दिस एक्सप्रेशन आर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, इज यूज इन MCQs। एंड अगर हम ओवरव्यू देखें पूरा टॉपिक का, तो टॉपिक इस तरह से है, देखिए इसमें पूरा टॉपिक आ गया। All the equations are important. You have to remember to solve the equations. क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है, देखिए द मोस्ट probably question asked in the exam, that is what is the angle at a maximum height in between velocity and acceleration. It means अगर हम प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करें तो जब हम मैक्सिमम हाइट पे होंगे तब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच का एंगल क्या रहेगा। तो देखिए यहां पर अगर हम पेन को थ्रो करेंगे इस तरह से तो ऊपर जाएगी, यहाँ पर उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, वापिस आएगी, क्योंकि यू टर्न लेने के लिए वेलोसिटी जीरो करनी पड़ती है। अगर मेरे को यहाँ पर चलना है, यहाँ से वापिस आने के लिए मीनवाइल और द पीरियड ऑफ टाइम, अ स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम, आई वांट टू लूज द वेलोसिटी, मेरे को वेलोसिटी जीरो करनी पड़ेगी, तभी हम यू टर्न ले सकते हैं, अदरवाइज यू टर्न इज नॉट पॉसिबल। सो दैट्स वाई हियर द वेलोसिटी इन द वाई डायरेक्शन बिकम जीरो, ओनली एक्स डायरेक्शन वेलोसिटीज एग्जिस्ट। तो एक्स डायरेक्शन तो हॉरिजॉन्टल है, तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स ऑलवेज डाउनवर्ड, तो उसके बीच का एंगल क्या रहेगा 90 डिग्री। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी एट अ मैक्सिमम हाइट, तो वो क्या रहेगा 90 डिग्री। And one of the frequently asked question in a short question, that is which component in a projectile motion become constant during the motion, मतलब पूरी जर्नी के दौरान कौन सा ऐसा कंपोनेंट है वो कांस्टेंट रहेगा, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो वो है हमारा हॉरिजॉन्टल मोशन का वेलोसिटी। हॉरिजॉन्टल मोशन का जो वेलोसिटी है वो ड्यूरिंग द मोशन कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि वहां पर एक्सेलरेशन ही नहीं है। जो एक्सेलरेशन होता है वो वेलोसिटी को चेंज करता है, चेंज इन वेलोसिटी दैट रिप्रेजेंट एक्सेलरेशन। जब हम फोर्स लगाएंगे तब वेलोसिटी का एक्सेलरेशन बनेगा, लेकिन यहाँ पर कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं, क्योंकि अगर आप यहाँ पर इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ग्रेविटी नहीं होती। ग्रेविटी तभी होती है जब आप वर्टिकल डायरेक्शन चेंज करते हैं, ओके। तो यहाँ पर कोई ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नहीं है, तो उसकी जो यूएक्स कंपोनेंट है वो रहेगा u cos थीटा, और ड्यूरिंग दिस जर्नी दिस u cos थीटा बिकम कांस्टेंट। दिस इज अ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इन एग्जाम्स। समझ में आई बात, ओके। ये एक्सप्रेशन को कई सारे लोग निगलेक्ट कर देते कि याद नहीं रखेंगे तो चलेगा, वो बड़ा बड़ा इक्वेशन है, इसको यूज कहाँ पर करेंगे, लेकिन उसकी भी एप्लीकेशन है समटाइम्स। और एक बार एग्जाम में ऐसा इक्वेशन आया भी था, अगर ऐसा एक्सप्रेशन होता कि y इज इक्वल टू √3 x माइनस 0.85 ऐसा कुछ था x स्क्वायर, ऐसा एक्सप्रेशन दिया हुआ है। एंड क्वेश्चन इज व्हाट इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल, मतलब आपको थीटा निकालना है, प्रोजेक्टाइल एंगल थीटा, तो फ्यूज उड़ जाएंगे, क्योंकि यहाँ ऐसा एक्सप्रेशन आपने देखा ही नहीं होगा।
आप कैसा एक्सप्रेशन देखते हैं? ऐसा ही एक्सप्रेशन देखा होगा कि 2t स्क्वेयर माइनस 3t स्क्वेयर प्लस 4, ऐसा छोटा छोटा एक्सप्रेशन देखा होगा। ऐसा एक्सप्रेशन हमने देखा ही नहीं कभी कि जिसमें x और y दोनों साथ में आते हैं। तो क्या करेंगे? तब ये एक्सप्रेशन काम में आएगा कि यहाँ पर x कंपोनेंट भी है और y कंपोनेंट भी है। x डायरेक्शन और y डायरेक्शन दोनों का प्रोजेक्टाइल मोशन हमने एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, देखिए y का कोफिशिएंट क्या है? tan थीटा। x का कोफिशिएंट tan थीटा है, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या पुट कर सकते हैं हम? √3। अगर दोनों को कंपैरिजन करेंगे तो √3 मिल गया। मतलब √3 कब होता है tan थीटा में? जब एंगल कौन सा रहेगा? 60 डिग्री। यस, व्हेन द एंगल इज 60 डिग्री देन योर tan थीटा इज √3। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल हमें मिल गया 60 डिग्री। ये होता है, तो इसकी एप्लीकेशन है। इसलिए ये कंपोनेंट, ये इक्वेशन को हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। दिस आर नोन एज ट्रेजेक्टरी मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। ट्रेजेक्टरी इक्वेशन, ट्रेजेक्टरी मीन्स पाथ, जो वेलोसिटी और जो हमारा बॉल था या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट था जिसने पाथ चूज किया, ये पाथ को हम बोलते हैं ट्रेजेक्टरी ऑफ मोशन। उसका एक्सप्रेशन वो है। तो पूरा जो चार्ट रहेगा अपना प्रोजेक्टाइल मोशन का, वो ये रहेगा। दिस ऑल थिंग्स आर इंपॉर्टेंट, यू हैव टू नोट डाउन योर नोटबुक्स। कितने एक्सप्रेशन है यहां पर? अगर हम सिलेक्ट करें तो दिस इज द फर्स्ट एक्सप्रेशन, दिस इज द सेकंड एक्सप्रेशन, उसका डबल है। तो ये याद रखने की जरूरत नहीं, कंसेप्ट समझ में आएगा तो पता चल जाएगा। मैक्सिमम हाइट, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन। देन रेंज, रेंज पता होना चाहिए, उसमें मैक्सिमम रेंज, ये रेंज का एक्सप्रेशन है, ये मैक्सिमम रेंज का। और दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, ये प्रोजेक्टाइल मोशन का इक्वेशन है। प्रोजेक्टाइल मोशन का इक्वेशन है। और पाथ का इक्वेशन, ऐसा भी बोल सकते हैं, पाथ का इक्वेशन है, उसका जो पाथ हमने चूज किया उसका ये इक्वेशन है। तो दिस ऑल इक्वेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड 1 और 2 क्वेश्चन समटाइम्स एग्जाम में आते हैं, लेकिन अगर एक बार एक्सप्रेशन सब समझ में आ जाएंगे तो वो क्वेश्चन हम सोल्व कर सकते हैं। थ्योरेटिकली इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। अगर कोई CBSE वाला है जिसको एग्जाम में ये थ्योरेटिकली आती है, तो ये भी थ्योरेटिकली प्रूव करने के लिए पूछ सकते हैं। लेकिन यहाँ से आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिलेगी कि दोनों डायरेक्शन में, इसलिए इसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल इन प्लेन, मोशन इन प्लेन। प्लेन मतलब दो सरफेस x और y, तो यहाँ पर मोशन x और y दोनों में हो रहा है। समझ में आई बात? ओके, ठीक है।